से कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। And he told Jesus, if you are indeed the Son of God, command these stones to become bread. हालांकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि यीशु अलमसीह ही खुदा का बेटा है। And even though he very well knew that Jesus the Christ is the Son of God. क्योंकि अगर मैथ्यू चैप्टर नंबर 3 की जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पर पब्लिकली यीशु अलमसीह के बारे में खुदा ने ये ऐलान किया कि ये मेरा प्यारा बेटा है। Because in Matthew chapter 3 we see the Lord publicly announced saying, this is my son. लेकिन फिर भी वो यीशु अलमसीह के पास आकर उससे ऐसे सवाल कर रहा है। And despite of this, Satan comes to Jesus and raises up this question. वो जानता है कि यीशु अलमसीह को भूख लगी हुई है। He knows that Jesus Christ is hungry. वो ये भी जानता है कि इंसान होने की हैसियत से, इंसान होने के नाते अभी ये लम्हात जो हैं वो यीशु अलमसीह के लिए बहुत कमजोर हैं। And he also knows that while he is a human, these moments are very weak moments for him. उसने यीशु अलमसीह को उसकी जरूरत के मुताबिक जो है वो चैलेंज किया। And he challenged according to the circumstance that Jesus was in at that point of time. अगर एक आम आदमी की हैसियत से देखा जाए तो ये बात कोई बुरी नहीं या अजीब नहीं है कि यीशु मसीह को भूख भी लगी है और उसमें ये पावर भी है कि वो पत्थरों को कहे तो वो रोटियां बन जाएं। Considering an ordinary human situation, it's not weird to understand that Jesus is hungry as a human, and at the same time he also has the power to command the stones to become bread. लेकिन यहाँ पर वो यीशु अलमसीह की डिविनिटी को जो है वो चैलेंज करता है। But this is the point where Satan is challenging the divinity of Jesus. शैतान हमें भी ऐसी सिचुएशंस में डालता है। And Satan puts us in the exact same situation. जो दुनिया के एतबार से तो हमें बहुत ठीक लग रही होती है। And according to the wisdom of the world, it may make sense. वो हमारे हालात का, हमारी सिचुएशन का फायदा उठाता है। But Satan takes advantage of the situation, the problem that we are in at that time. और हमें आजमाता है। And he tempts us. और वो हमारी जरूरतों को हमारे सामने लाकर रख देता है। And he brings our needs in front of us. और फिर उन जरूरतों को गलत तरीके से पूरा करने के लिए हमें उकसाता है। And then he encourages us to fulfill those needs in the wrong way. ईमानदारों पर भी आजमाइश एंड उसी वक्त स्टार्ट होती है जब वो इस हालत में होते हैं। Even for the honest people, even for the faithful, the temptation begins when they are in the weakest point. और फिर उस जरूरत को पूरा करने के लिए And then to fulfill that need, वो जरूरत कुछ भी हो सकती है। that could be any kind of need. वो जरूरत हमारा अच्छा फ्यूचर हो सकता है। It could be a good future. वो दौलत हो सकती है। It could be वो finance. शोहरत हो सकती है। It could be वो prosperity. अच्छा रिलेशनशिप हो सकता It है। could be a good relationship. सो इस तरह की जरूरतों को जो हमें चाहिए होता है वो ईमानदारों के सामने लाकर रख देता है। And in this way, any kind of need that we are in, which are presented before a faithful और person, फिर उन जरूरतों से वो हमें आजमाता है। and when we are in need, the Satan comes to tempt us. लेकिन हमें ये देखना है कि हमने यीशु अलमसीह की तरह उन आजमाइशों पर गालिब आना है। But we need to understand that just like Jesus, we need to overcome these temptations. हमें ये देखना है कि इस सिचुएशन में यीशु अलमसीह ने क्या किया। We must understand what did Jesus do in such a situation. यीशु अलमसीह ने उसे ये जवाब नहीं दिया कि हाँ मैं खुदा का बेटा हूँ, या उसने वो मौजज़ा करके नहीं दिखा दिया फौरन से। Jesus did not immediately show a display of his power and say or prove that he is the Son of God, and immediately did what Satan asked him to do. बल्कि यीशु अलमसीह ने उसे वर्ड ऑफ गॉड, कलाम के साथ जवाब दिया। But Jesus answered him through the word of God. इस्तिस्ना की किताब का हवाला ड्यूटरोनोमी यीशु मसीह ने कोट किया, चैप्टर नंबर 8 और उसकी वर्स नंबर 2 से 4 तक। In Deuteronomy chapter number 8 verses 4 through 2 to 4 chapter कि 4. इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से
जो खुदा के मुंह से निकलती है। And he said that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. वर्ड ऑफ गॉड जो है वो पावरफुल एंटीडोट है टेम्पटेशन का, The word of God is a powerful antidote that stands against temptations. क्योंकि टेम्पटेशन जो है वो एक ग्रेटेस्ट वेपन है इब्लीस का, शैतान का, जो वो हमारे लिए इस्तेमाल करता है। Because temptation is the greatest weapon that Satan uses against us. ना सिर्फ वो हमारे लिए इस्तेमाल करता है, बल्कि उसने खुदा के बेटे यीशु अल मसीह के लिए भी इसे इस्तेमाल किया। Not just against us, but he also used the same weapon against the Son of God, Jesus. लेकिन इस टेम्पटेशन में हमारे लिए क्या मैसेज है? But what is the message for us through this temptation? कि जो कुछ भी यीशु मसीह की तरफ से नहीं, वो हमें नहीं करना है। But the message is this: whatever is not from Jesus is something we should not follow through as well. किसी भी चीज को पा लेने के लिए हमें नाजायज तरीके इस्तेमाल नहीं करने हैं। To receive or to get anything in our lives, we should not follow the wrong means. हर बात को खुदावन के सामने रखना है। We should present everything before God. और याद रखें, जब हम हर एक बात को खुदावन के सामने रखते हैं, तो कलाम मुकद्दस में पहला पतरस उसके 5वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है कि बस तुम खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, तो वो वक्त पर तुम्हें सर बुलंद करेगा। And as it says in 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. हालेलुया। Hallelujah. So अगर हम मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 और उसकी वर्स नंबर 5 to 7 पढ़ें, तो यहाँ पर दूसरी दफा फिर सैटन जो है वो यीशु अल मसीह के पास आता है। So in Matthew 4 verses 5 through 7, we see Satan coming towards Jesus again. और इस टाइम फिर वो आकर कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने दाई नीचे गिरा दे। And this time he says, if indeed you are the Son of God, then you can throw yourself down from the pinnacle. Again he starts with the doubt. And again he starts with a doubt. Doubt is another weapon of Satan. Just- डाउट जो है वो हमेशा एक शैतान का दूसरा हथियार है, जो वो ईमानदारों के खिलाफ, जो वो मसीहियों के खिलाफ, जो उसने खुदा के बेटे यीशु अल मसीह के खिलाफ इस्तेमाल किया। So doubt is the second weapon that Satan uses, and he used it against Jesus. वो हमेशा ईमानदारों के दिलों में शक डालने की कोशिश करता है, It is his mission to bring a doubt in the hearts of people who are faithful. क्योंकि शक जो है वो ईमान के ऑपोजिट है। Being doubtful is against being full of faith. और जहां पर शक आ जाता है, वहां पर फेथ, ईमान जो है वो कमजोर होता चला जाता है। And where there is doubt, the faith keeps on becoming weaker and weaker. इस बार सेकंड टाइम में This जब time. यीशु इब्लीस ने देखा कि पहली बार यीशु अल मसीह ने किताब मुकद्दस का वर्ड ऑफ गॉड का हवाला दिया, तो इस दफा जब इब्लीस यीशु मसीह पर वार करने के लिए आया है, तो उसने भी खुदा के कलाम का सहारा लिया है। The first time when Satan saw that Jesus replied with the word of God, the second time he uses the word of God to go back against him. शैतान बाइबल में से ज़बूर नंबर 91, साम 91 और उसकी वर्स नंबर 11 और 12 को कोट करता है। Satan quotes Psalm 91 verse 11 and 12. वो कहता है कि तू अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो जो फरिश्ते हैं वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। And he says that for he shall give his angels charge over you, and they will hold your feet up. आज हमें भी बहुत केयरफुल होना है। And today we need to be very careful. इब्लीस हम पर भी खुदा के कलाम में से वार कर सकता है। Satan could attack even us through the same word of God. वो खुदा के कलाम की गलत तशरीह को हमारे सामने पेश करता है। He brings the word of God in a wrong way before us. वो गलत डॉक्ट्राइन को हमारे सामने पेश करता है He presents the wrong doctrine before us. और आयात का गलत इस्तेमाल करके बाज़-औक़ात लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। And he misuses the word of God, and people often lose their lives because of this. एक शख्स था
There was a person उसने यीशु मसीह को कबूल किया who received Jesus as a savior, और उसने ये कहा कि मैं डेली बाइबल मुकद्दस को पढ़ूंगा और मैं इसे खोलूंगा और जहां से बाइबल की वर्स निकलेगी वो बाइबल जो है कि आयत मेरे लिए होगी. and he said that I'm going to read the Bible every day, and I will open the Bible randomly, and whichever verse shows up before me is going to be the word for me for that day. और एक दिन जब वो सुबह उठा उसने बाइबल को खोला One morning he opened his Bible, और जब उसने खोला तो वहां पर लिखा हुआ था यहूदा अस्करियोती ने फांसी ले ली. and it said that Judas went and killed himself, वो बड़ा उदास हुआ and he was very sad, और उसने बाइबल को बंद किया, and he closed the Bible, प्रेयर की he prayed, और फिर अगले दिन फिर जब वो खुदावन की हुजूरी में बैठा and the next day again when he went in the presence of the Lord, उसने फिर बाइबल को रैंडमली खोला and he opened a random page in the Bible, और फिर बाइबल में से वर्स उसके सामने आई and this verse popped up before him, और वहां पर लिखा हुआ था तुम भी ऐसा ही किया करो. and it said, you also do the same. अब उसने बाइबल को बंद किया, And this time he closed the Bible दुआ की and he prayed, और जाके बिल्कुल वैसा ही किया जो उसने कल पढ़ा था. and he went and did the same thing that Judas did. ये बात है जब हम खुदा के कलाम को गलत तौर पर पढ़ते हैं. And this is the problem when we read the word of God in the wrong way. शैतान गलत किस्म की डॉक्ट्राइन हमारे सामने ले आता है. Satan will bring the wrong doctrine before us. कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं इब्तिदा में ही जेनेसिस की किताब में तो बागे अदन में आदम के साथ भी उसने ऐसा ही किया. In the book of Genesis, we see that Satan did the same with Adam. उसने हव्वा के पास आकर कहा क्या खुदा ने तुमको सारे दरख्तों का फल खाने से मना किया है? And he came before Eve and asked her, did the Lord indeed forbid you to eat fruit? खुदा के कलाम को मोल्ड करके पेश किया He twisted the word of God and presented it before Eve. और इस तरह से And this way, आदम और हव्वा दोनों गुनाह में गिर गए. Adam and Eve, both of them fell into sin. और जब वो गुनाह में गिर गए And तो when- उनकी वजह से गुनाह जो है वो सारी दुनिया में फैल गया. And because they fell in sin, through them, the sin was spread into the entire world. कलाम में लिखा है कि जो शख्स इस दुनिया में पैदा होता है वो गुनाह की हालत में पैदा होता है. And the word says that whoever is born in this world is born into sin. लेकिन खुदा का शुक्र हो But thanks be to God कि उसने हमें इन सब से निकालने के लिए अपने बेटे यीशु अल मसीह को इस दुनिया में भेजा. that He sent His Son Jesus Christ into this world that He may free us, deliver us from all these यस sins. हालेलुया. और उसने सलीब पर अपनी जान दी And He gave His life on the cross और ताकि हम जो है वो गुनाहों से रिहाई हासिल कर so सकें, that we may be free from our sins, ताकि हम इब्लीस की गुलामी में ना रहें, so that we may not be slaves to the devil, ताकि हम इब्लीस की गुलामी से आजाद होकर जिंदगी so गुजारें. that we may be free from the devil's slavery and live our lives. उसने हमारी खातिर उसने हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए. He bore all of our sins upon His body. उसने हमारी खातिर कोड़े खाए, For us, He was उसने beaten, कांटों का ताज पहना, and He wore the crown of उसकी thorns, फसली में नेजा मारा गया, and His side was उसे pierced, बेइज्जत किया गया. and He was people made fun of Him. लेकिन इन सब चीजों को उसने सिर्फ मेरी और आपकी खातिर बर्दाश्त किया ताकि मैं और आप बच जाएं. But He bore all these things and suffered this so that you and I may be delivered. उसके खून बहाने से हमें निजात मिली है. By His blood we have been forgiven. उसके खून बहाने से हमें मुआफी मिली है. By His blood we have received और forgiveness. उसके खून के वसीले से ही निजात इस दुनिया में आई है. And it is through His blood that forgiveness, salvation has come to this world. इब्लीस ये समझता था And devil understood this, कि जिस तरह से उसने आदम को गुमराह कर लिया, and in the same way he confused Adam, जैसे उसने बाकी नबियों को या बाकी लोगों को गुमराह कर लिया, and in the same way he confused all the other तो prophets. ऐसे ही वो यीशु मसीह पर भी अटैक करेगा. And he thought he could attack Jesus in the exact उसने same manner. सोचा कि अब तो यीशु
खून और गोश्त में है, अब शायद इसके लिए ये कमजोर लम्हात है, अब मैं इस पर गालिब आ सकता हूँ। And he thought Jesus is now in flesh and blood, and this is the right time that I may attack him. और इब्लीस बहुत ही पावर और कॉन्फिडेंस के साथ यीशु अल मसीह के पास आया, And with much power and confidence, Satan came before लेकिन Jesus. उसे शर्मिंदा होकर वहां से भागना पड़ा। But Satan had to be ashamed and leave that place. हालेलुया, क्योंकि Hallelujah. वो नहीं जानता था कि जो मेरे सामने खड़ा है वो बादशाहों का बादशाह है। Because he did not understand that the one who is before him is the King of Kings and the Lord of Lords. वो कामिल खुदा भी है और वो कामिल इंसान भी है। He is also a perfect God and also a perfect वो human. बादशाहों का बादशाह है, He is the King of Kings. वो खुदावंदों का खुदा है, He is the Lord of Lords. और इस कायनात में कोई भी चीज उसको हरा नहीं सकती है। And in this universe, there is nothing that can overcome him. सो हम किस तरह से इब्लीस पर और उसकी टेम्पटेशंस पर या उसके वेपन्स को किस तरह से हम नाकाम बना सकते हैं? So how can we make the weapons of the enemy to no effect? वर्ड ऑफ गॉड के जरिए से, Through the word of God, प्रेयर के वसीले से, through prayer, रोजा रखने के वसीले से। through fasting and praying. एक बहुत ही बड़े खुदा के खादिम उन्होंने कहा कि जब एक कमजोर ईमान मसीही भी अपने घुटनों पर झुक जाता है दुआ करने के लिए, तो इब्लीस उसके सामने ठहर नहीं सकता और वो थरथराता हुआ, वो डरता हुआ, वो कांपता हुआ उनके सामने से भाग जाता है। A well-known man of God once said that even if a weak Christian with a weak faith bows down on his knees and prays and cries out before God, the power of Satan will have to run away from him. इस दफा फिर यीशु अल मसीह ने उसे शिकस्त दी और लिखा है, खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा, तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। And the word says, do not tempt the Lord your God. इसी तरह से फिर तीसरी बार इब्लीस यीशु अल मसीह के पास आया। So now the third time Satan came before Jesus. वर्स नंबर 8 में लिखा है कि इब्लीस उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे दुनिया की सब शान और शौकत और सारी सल्तनतें उसे दिखाई। And again the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. आजकल तो टेक्नोलॉजी का और एआई का दौर है, लेकिन उस टाइम इब्लीस ने एक ही मोमेंट में सारी दुनिया की शान और शौकत यीशु अल मसीह को दिखाई। Now is the age of technology and AI, but in those days when none of this was there, Satan in one glance showed Jesus the और entire ये world. ऑफर यीशु अल मसीह के सामने रखी कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। He presented Jesus with this offer saying, if you bow down and worship me, I will give you all of this. आजकल भी बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस काम को कर रही हैं, And even today there are so many organizations that are doing such a जो work. इंसान को खुदा से दूर ले जाती हैं And they do things that make man move away from God. और इंसान को ये सारी शान और शौकत, इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ देने का वादा करती हैं। And they promise to give man all the prosperity and being famous and being blessed with a lot of riches. और इसके बदले में वो इंसान की सोल चाहती हैं। And instead of this, they want your soul. और बहुत से फेमस लोग, बिजनेसमैन, एक्टर्स, सिंगर्स अपनी रूह को, अपनी स्पिरिट को सेल कर देते हैं। And many famous business people, actor, many famous musicians, they sell their soul to the devil. इसके बदले में And instead of this, उनको दुनिया की शान और शौकत तो मिल जाती है, they do receive all everything in the world. उनको फेम तो मिल जाता है, They get all the fame in the उनको world, शोहरत तो मिल जाती and है, they get all the glory in the world. लेकिन उनकी रूह जो है वो जहन्नुम की, हेल की हकदार बन जाती है। But their spirit becomes the inheritor of hell. लेकिन याद रखिए कि मेरा और आपका नजात दहिंदा यीशु अल मसीह इस पर भी गालिब आया। But remember that your and mine Redeemer, who is Jesus, was victorious over this situation. उसने बड़ी अथॉरिटी के साथ कहा, And he said with a lot of authority, उसने कहा, ऐ शैतान
And he said, away with you, Satan. और लिखा है कि शैतान उसके पास से दूर चला गया। And it says that Satan fled from his presence. इसकी क्या वजह है? And why did this happen? क्या वजह है कि शैतान उसके पास से चला गया? Why did the devil leave him? वजह ये है कि जो इंसान रोजा रखता है, जो इंसान खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स की संगत में, फेलोशिप में रहता है, the reason is that a person who fasts and prays, who has fellowship with the Father, the Son and the Holy Spirit. जैसे यीशु अल मसीह ने 40 दिन और रात रखी, As Jesus fasted 40 days and nights. तो वो रूहानी तौर पर मजबूती पाता है। And such a person who fasts like this, they become strong in the spirit. और जब वो रूहानी तौर पर मजबूत हो जाता है, And when this person becomes strong spiritually, और फिर जब वो इब्लीस का मुकाबला करता है, and then when he faces the temptation of the जब वो Satan, स्पिरिचुअल पावर से भरकर शैतान से कहता है कि ऐ शैतान दूर हो, तो फिर शैतान उसके पास से चला जाता है। when being full of the spiritual anointing, when he tells the Satan, hey Satan, get away from me, the Satan has no choice but to flee. और फिर उसके बाद उसकी जिंदगी में कुछ और पॉइंट्स का इजाफा होता है। And after this, in his life, many things change. वो रूहानी तौर पर मजबूत हो जाता है, And he becomes strong in his spirit. अकल और शाऊर में बढ़ जाता है, And he grows in his wisdom and grace. वो कलाम में तरक्की करता है, And he continues to grow in the word. वो आजमाइशों पर गालिब आता है, And he overcomes all the और temptations. जब वो इब्लीस को डांटता है तो इब्लीस उसके पास से भाग जाता है, And when he rebukes the Satan has to run away. और जब इब्लीस उसके पास से भाग जाता है तो एक और बड़ा काम होता है कि फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगते हैं। And as the devil leaves him, we see that the angels come and minister to him. अगर हम रूहानी तौर पर स्ट्रांग होना चाहते हैं, If you want to be strong spiritually, तो फिर हमें यीशु अल मसीह के पैटर्न को फॉलो करना है, then we need to follow the pattern of जो Jesus, यीशु अल मसीह ने हमें दिया। the pattern that Jesus gave us. अगर हमारी जिंदगी में गुनाह है, If there are sins in our life, अगर अभी तक हमसे गलतियां हो रही हैं, गुनाह सरजद हो रहे हैं, if so far we have been giving into temptations and being in sin, तो सबसे पहले हमें गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है। then the first thing that we need to do is to confess our फिर sins. हमें इकरार करके उन गुनाहों को तर्क करके उनसे तौबा करने की जरूरत है, And then after confessing, we need to ask forgiveness for those sins. क्योंकि कलामे मुकद्दस में लिखा है पाक बनो जैसा वो पाक है। Because the word says, be holy as he is holy. और फिर जब हम उसकी मानंद पाक बन जाते हैं, उसके बाद अगला स्टेप है हमें बपतिस्मा लेना है। And then when we are holy according to, just like him, the next step is to be baptized. और जिन्होंने लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर ऐसा मौजूद है जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, तो फिर जरूरत है कि जैसे यीशु अल मसीह ने बपतिस्मा लिया उसी तरह से बपतिस्मा लेना। If you have been baptized, it's a wonderful thing, but those who have not, it's very important that you take baptism just like Jesus did. और रूहुल कुद्स को अपने अंदर आने देना। And then to receive the Holy Spirit inside. और जब रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों में आ जाएगा, रूहुल कुद्स को हमारी जिंदगियों में, अपनी जिंदगियों में रूहुल कुद्स को काम करने का मौका देना। When the Holy Spirit comes inside of you, you then need to allow the Holy Spirit to do the works in your life. और फिर बाप की रिफाकत में, खुदा की फेलोशिप में रहना। And then it's important to be in the fellowship of Father. और फिर रोजे रखना। And then to fast. और जब हम ये सब करेंगे तो फिर हम स्पिरिचुअली तौर पर स्ट्रांग हो जाएंगे। And when we do all of these things, we become strong फिर हम spiritually. आजमाइशों पर गालिब आएंगे। And then we are able to overcome the temptations. फिर हम इब्लीस को अपने पास से जब झिड़केंगे तो वो हमारे पास से दूर चला जाएगा। And then when we rebuke Satan, he will leave. और फिर फरिश्ते आकर हमारी खिदमत करेंगे। And then the angels will come and minister to us. फिर हम चलते फिरते बाबरकत होंगे। And then as we walk and talk, we will grow. फिर हम रूहानी तौर पर स्ट्रांग
इंसान होंगे। and we will become people who are strong spiritually. फिर हम चाहे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, फरिश्ते हमारी हिफाजत करेंगे। Then even if you're driving a car, there will be angels फिर protecting अगर you. हम ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहे हैं तो खुदा के फरिश्ते हमारे निगहबानी करेंगे। And even if you're working in the office, there will be angels of God that will protect you. फिर हम चाहे कोई भी काम कर रहे हैं तो खुदावंद अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, क्योंकि ज़बूर में लिखा है, रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नु फरमान कि ओ सब तेरियां राहां विछोड़ तेरे निगहबान। And then, as the word says, that God will command His angels to guard you and to protect you. हालेलुया। Hallelujah. सो आइए, अगर हम रूहानी तौर पर स्ट्रांग होना चाहते हैं तो खुदावंद के इस पैटर्न को फॉलो कीजिए और खुदावंद मुझे और आपको बरकत बख्शे। So let's grow strong spiritually and follow the pattern of Jesus. May God give us grace. और याद रखिए, जब हम स्ट्रांग होंगे, आजमाइशों पर गालिब आएंगे, तो कलाम मुकद्दस में मुकाशफा की किताब में, बुक ऑफ रेवलेशन में एक बहुत लंबी लिस्ट है कि जब हम आजमाइशों पर गालिब आएंगे तो खुदावंद हमें क्या-क्या चीजें, कौन-कौन से रिवार्ड खुदावंद हमें बख्शेगा। And the book of Revelation speaks about a lot of rewards in our life. When we overcome, it is only for those who overcome. मुकाशफा उसके चैप्टर 2 वर्स 7 में लिखा है कि जो गालिब आएगा, जिंदगी के दरख्त में जो फिरदौस में है, मैं उसका फल खाने को उस शख्स को दूंगा। And in Revelation chapter 2 verse 7 it says, I will give to him who overcomes, I will give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise. चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 17 में लिखा है कि मैं पत्थर पर एक नया नाम लिखूंगा। And in verse 17 it says that I will write a new name on the stone. और अगर हम चैप्टर नंबर 2 और उसकी वर्स नंबर 26 को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि जो गालिब आएगा मैं उसको कौमों पर इख्तियार दूंगा। And Revelation 2:26 says that he who overcomes and keeps my works until the end, to him I will give power over the nations. चैप्टर नंबर 3 और वर्स नंबर 5 में लिखा है, Chapter 3 verse 5 says कि वो सफेद पोशाक, रोब ऑफ राइचियसनेस हमें देगा, और लिखा है मैं उस शख्स का नाम जो आजमाइशों पर गालिब आएगा, उस शख्स का नाम कभी किताबे हयात से मिटाया ना जाएगा। It says, he who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life. और आखिरी बात, एक इतनी बड़ी बात खुदावंद ने कही, चैप्टर नंबर 3 और उसकी वर्स नंबर 21 में है कि मैं उस शख्स को अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा। And then one of the biggest things that the word says is in chapter 3 verse 21, it says, to him who overcomes I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat with my father on his throne. हालेलुया। Hallelujah. तो आइए, अगर आप गलिबा चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आप भी यीशु अल मसीह के साथ उसके तख्त पर बैठें, तो चंद लम्हात के लिए अपने कदमों पर खड़े होकर खुदावंद की हुजूरी